سب سے پہلے تو میں اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ کسی کو منشی کہنے سے میرا خیال ہے وہ برا مان گیا تو میں انہیں چپڑاسی کہہ دیتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اوقات ایک چپڑاسی سے بھی کم ہے. چپڑاسی بھی حلال کی روٹی کماتا ہے, سارا دن محنت مزدوری کر کے حق حلال کا جا کے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کا نوالا دیتا ہے. آپ جن کی نوکری کر رہے ہو نا, اور آئین پاکستان کے ساتھ اگر کوئی غداری کر رہا ہے تو وہ آپ ہو, وہ ہم نہیں ہیں. آپ کو اگر عزت اتنی پیاری ہے نا تو عزت والے کام کرو. اور میں بتانا چاہتی ہوں, فواد چودھری میرا بھائی, میرا شیر بھائی, اس کی اسمائل دیکھی ہے, ہم نہیں ڈرے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ڈرنے کا وقت آپ کا ہوا چاہتا ہے, آپ کا, آپ کے پیچھے جو تجربہ گاہ ہے ان کا, اور وہ چوہا جس کو تم لوگوں نے, وہ جوکر جس کو تم لوگوں نے پاکستان کا تماشا لگایا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی, جس کو تم لوگوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے. اور ایک وہ جو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, وہ لوگوں کے جھوٹا کھانے والا, لوگوں کا بچا کچا فرنٹ مین کھانے والا, سو کالڈ زرداری کا لے پالک بیٹا, تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری اوقات ہمارے ایک ورکر کے برابر کی بھی نہیں ہے. ورکر بھی ہمارا عالی شان ہے کیونکہ وہ اس ملک کے لیے, ایک کاز کے لیے, ایک مقصد کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہے. تو نقوی, میں تمہیں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تمہارے یہ 3 مہینے تو گزر ہی جانے ہیں, اس کے بعد تم نے زندگی میں کبھی اس عہدے پہ نہیں پہنچنا کیونکہ تمہاری اوقات ایک کاؤنسلر کی بھی نہیں ہے. جو تمہیں لے کے آئے ہیں نا, جن کے تم بغل بچہ ہو, جن کے تم پپو بچہ بن کے کام کر رہے ہو نا, تو ایک وقت آنا ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے آنا ہے اور رول آف لا نے آنا ہے. اس ملک کو آزادی ہم نے دلانی ہے. تو میں پھر اس دن آپ سے پوچھوں گی, میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گی. ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں, آپ کو, آپ کے لانے والوں کو, آپ کے اگلوں کو, آپ کے پچھلوں کو, کہ ہم نہیں ڈریں گے, ہم نہیں جھکیں گے. آپ کو ڈرنا پڑے گا, آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو ہم تابع کریں گے, آپ کا منہ سر نیچا کریں گے آئین پاکستان کے آگے. اور اگر کوئی چیز بالا تر ہوگی, مقدس ہوگی, وہ میرے ملک کا, میرے وطن عزیز کا آئین ہوگا. اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ جیلوں سے کس کو ڈراتے ہو؟ ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, اور ہمارے چمڑے کے کاروبار بھی نہیں ہے, ہم نے کوئی چھوٹی بڑی سرجری بھی نہیں کرانی. ہم نہیں جائیں گے لاہور چھوڑ کے. ہمارا یہ وطن ہے, اور اس وطن کی حفاظت کے لیے, اس وطن کو سر بلند رکھنے کے لیے, اس غیور عوام کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں. میرے ملک میں اگر کوئی اعلیٰ ہوگا, کوئی برتر ہوگا, وہ میرے ملک کا آئین ہوگا, اور کوئی کمتر ہوگا, نیچا ہوگا, چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوگا, وہ آئین پاکستان کے نیچے ہوگا. اور اگر تمہیں یہ باتیں بری لگتی ہیں تو جاؤ, بھلے لگیں, جاؤ کراؤ, ہمارے اوپر جتنے مرضی کیسز کرنے ہیں کراؤ, لیکن اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. ہم نہیں بیٹھیں گے ویل چیئر کے اوپر, ہم رونا دھونا نہیں ڈالیں گے. وہ شیر ہمارا بیٹھا ہے آ کے ادھر, 4 گولیاں لگی تھیں, اس دن سے زمان پارک میں بیٹھے ہیں. کبھی کیا بے پرکی اڑاتے ہو؟ وہ کوئی نواز شریف ہے, اور وہ کوئی شہباز شریف ہے, وہ کوئی زرداری ہے. تم چور, تمہاری نسلیں چور, تمہارے اگلے چور, تمہارے لانے والے چور. اور ہمارا منہ مت کھلوائیے گا کہ کس طرح سے تم لوگ آئے ہو. تم لوگوں نے سیاست کو دھندا بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری بیٹی جو کارنامے کر کے گئی ہے نا, اس وطن کے ایک ایک صحافی کو پتا ہے, ایک ایک صاحب حیثیت نالج رکھنے والے کو پتا ہے کہ یہ پاور کوریڈورز میں آنے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو. ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہم عین اس کو جہاد سمجھتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں, نصب العین بنا لیتے ہیں, پھر کیا ڈرنا, کیا زندگی, کیا موت. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے دن ہیں عزت سے گزاریں گے, آن سے گزاریں گے, شان سے گزاریں گے. تم بھگوڑے آج بھی ہمارے سی ایم آفس پہ, ہمارے پرائم منسٹر آفس پہ قبضہ کر کے اوقات کیا ہے؟ میں جس کو آج بڑی عزت پیاری ہے نا, اور جو بڑا غیرت مند بنا ہے, میں اس کو چیلنج کرتی ہوں, کسی مال میں کسی جگہ پہ اپنی شکل دکھا. چپڑاسی تو چھوٹا لفظ ہے, دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے, ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے. ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو.
इलेक्शन कमीशन हमारा मैंडेट चोरी करने का मंसूबा बनाए और हम उफ तक ना करें। क्यों? हम करेंगे, हम बोलेंगे, हम आपको आपकी औकात भी बताएंगे, आपको आईना भी दिखाएंगे। वो दिखाना मेरे मुल्क का आइन मुझे इजाजत देता है। हम सियासत में झक मारने के लिए नहीं आए, हम टीटियां लगाने के लिए नहीं आए, हम मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नहीं आए। लिहाजा जो जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही पांव फैलाए और डरे उस वक्त से। आज मेरे मुल्क का ईमानदार जो भी जिस भी पेशे से वाबस्ता है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। वो चाहे कोई कारोबारी हो, उसको कारोबार बचाना मुश्किल है। क्यों? तुम लोगों की वजह से। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हो। हम इस कब्जे से जान छुड़ाएंगे और अवाम जान छुड़ाना चाहती है। यही वजह है कि तुम कभी लैब के अंदर कभी कोई डड्डू तैयार करते हो, कभी कोई तजर्बा करते हो, सारे फेल होंगे। आके निकलो तो सही। हमें पता है आपका डरना, आपका कांपना हमें समझ आती है, वो जायज है, क्योंकि तुम लोगों को इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम वोट की जगह पे जूता मारेगी। तुम हमें कैंपेन करके दिखाना, तुम हमें हलकों में निकल के दिखाना। और इलेक्शन कमीशन में तुम्हें बताती चलूं, तुमने हमारे जिंदा पाकिस्तानियों को मुर्दा करार दिया था। और बेशर्मी और ढिठाई का आलम ये, किसी मुल्क में एक शख्स के साथ ये किया जाता, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन मुअत्तल होता। और तुमने 4 मिलियन को मुर्दा करार देके और कह दिया कि ये टेक्निकल एरर था। आना है आईने पाकिस्तान ने, अमल दरामद होना है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसको तुम बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बनाना रिपब्लिक को बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि बंदरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत जो कर दिया गया है। एक जो नौटंकी बात जाता है तो दूसरे को बिठाते हो। मसलन आज की ताजा खबर ये है कि फवाद चौधरी जैसा बहादुर बेटा, वो जमदाई चौधरी है, वो ये नकवी से डर जाए, वो जो बैठा हुआ 2-2 टके की रिश्वत लेता है ये उससे डर जाए, ये शहबाज शरीफ से हम डर जाएं? हम नहीं डरेंगे। लिहाजा अपनी औकात में रहें। और मेरी अदलिया से अपील है कि पाकिस्तान उजड़ चुका है, हमारी आंखों के सामने उजड़ रहा है। मुझे जब बांग्लादेश की मैं तारीख पढ़ती हूँ या जितनी सुना है या देखा है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे वो वक्त याद आता है कि ऐसे ही हुआ होगा। सबकी आंखों के सामने हमारा वतन 2 टुकड़ों में बट गया और यहाँ पे इन्होंने अपने अपने कारोबार, अपने अपने मफादात, अपने अपने गरूर और अना और मैं ना मानू की रट लगा के रखी। ये इन्होंने जिद की। आज ऐसी क्या बात हो गई? आप सोशल मीडिया उठा के देखो, हर जी शऊर पाकिस्तानी, कम पढ़ा लिखा स्कॉलर, मजदूर, वो क्यों कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो था, उसने हकीकी आजादी दिलाई अपने बांग्लादेशियों को। आज वो इज्जत और गैरत से जीते हैं। आज उनकी कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनती। आज उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है। और जब हमारे साथ हमेशा से ही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई इस मुल्क के साथ, जब बांग्लादेश टूटा तो यहाँ पे सो कॉल्ड अपने पपेट्स के थ्रू, जिनको आज हम लिफाफा कहते हैं, उनको बताया गया कि आम पाकिस्तानियों को बताओ कि अच्छा हुआ दफा हो गए, हर वक्त इनका सलाब में डूबे रहते थे, गरीब से थे और कभी उनकी शक्लों के ऊपर ये बात करते थे, बेशरम बेगैरत। लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ कि होश के नाखून लें, सोने की मुर्गी को ज़िबा मत करें। और सबसे पॉपुलर जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो 22 करोड़ अवाम आपको वहां जाके छोड़ेगी जहां पे तुमको पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। कोई फोर्स है 22 करोड़ के बराबर की, ले आना। फिर हमारा उतना ही सब्र आजमाओ जितना हम बर्दाश्त कर सकें। हमारी चादर और 4 दीवारी का पहले भी तकद्दुस पामाल हुआ। और इस वक्त मैं ये बताती चलूं, ये जहां पे मैं खड़ी हूं ना, ये हमारी रेड लाइन है, क्रॉस करने की हिम्मत ना करना, वरना हम किसी जगह का भी लिहाज नहीं करेंगे। कोई मेरे मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है, सिर्फ एक ही मुकद्दस चीज है, वो आईने पाकिस्तान है। और जो हम यहाँ पे खड़े हैं ना इस तरफ, हम इस मुकद्दस आईने पाकिस्तान को मुकद्दस तरीन दर्जा देते हैं और उसे वो दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे। हम आयन शिकन नहीं है, हम आयन शिकन टोले को नकेल डालने के लिए ये जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे जवान भाई, आज मेरा भाई फराज, मुझे बड़ा दुख है जिस तरह से इन्होंने उनको मारा। वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हमें पकड़ेंगे तो हम ये जमहूरियत के अंदर पूरी दुनिया में
फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे सियासी कारकुन जेलम में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह से उन्हें घसीटा, जिस पुलिस ऑफिसर ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है या कर रहा है, मैं उन्हें वार्न करती हूँ, उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। अब हम कोई होम्योपैथिक गवर्नमेंट नहीं आएंगे, हम आएंगे तो हम आपका हिसाब चुकता करेंगे। जो कानून को हाथ में लेगा हम उसको कानून की शक्ल में ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और कोई दोबारा ये हिम्मत नहीं करेगा। और हमें ये जो हाइब्रिड रेजीम है ना, इससे स्टे अवे। पाकिस्तान ने बड़ा बर्दाश्त कर लिया है। पाकिस्तान में बिजली बंद, शर्म से डूब मरो बेशर्मो, तुम लोग बड़े तजर्बाकार का दावा बोल के आए थे। मेरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना गंदुम है, ना रोटी है क्या तुम लोगों की ये फस्तायत? और ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? हम नहीं करेंगे। आखिर में मैं पूरी कौम को ये आगाह करना चाहती हूँ, अभी चेयरमैन साहब अपना जो भी लाया अमल देंगे, उसके बाद मैं आके यहाँ से आपको आगाह करूंगी, पल पल आगाह करूंगी। फवाद भाई से बढ़ के ड्यूटी दूंगी और फवाद भाई को बताना चाहती हूँ कि ये आपको क्या डराएंगे, हमें नहीं डरा सकते। ये आपकी बहनें, आपकी माएं, बेटियां सब आपके साथ हैं। आप हीरो और ये बुज़दिल बिगोड़े ये विलन है इस मुल्क के लिए। और ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तुम्हारे मुकद्दर में अजलों की जिल्लत है। मैंने पहले भी ये बोला था, वो जिस शख्स के लिए बोला था ना, जिसे बड़ा माइंड किया था, वो धक्के खाता फिर रहा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा हुआ बेहुदा मुंह लेके, जो मेरे मुल्क के आइन को अपनी लौंडी समझता था, अपने बूटों के तले कुचलता था। आज वहाँ पे कभी किसी इनकम टैक्स के ऑफिस में मुंह उठा के बैठा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसने इस मुल्क का आइन तोड़ा है, लोगों ने उनकी कब्रों को भी माफ नहीं किया ना। अब ये जो तमाशा करे ना जरदारी और उसका पिल्ला, कोई नहीं माफ करेगा। और मैं आपको बताती चलूं, अगर ये तमाशा इसी तरह है तो आप हमारे बच्चों को जो जमहूरी और सियासी हक को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करें तो आप उन पर तशद्दुद करो। तो अब मैं तुम्हें भी वार्न करती हूँ, तुम लोग भी अब जरा कहीं निकल के दिखाना। हम तुम्हें नहीं निकलने देंगे, तुम्हारे लिए हम सड़कें बंद करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। लिहाजा कानून को हाथ में उतना लें जितनी तुम्हारी औकात है। बाहर निकलो, तुम्हारी तो बीवियों ने तुम्हें वोट नहीं देने, खैर उसने तो काउंसलर भी नहीं लड़ सकता। लिहाजा तुम्हारी तो घर के बच्चे तुम्हें ऑन ना करें, क्योंकि हराम के पे कमाई हुई औलादें भी आगे से मुकर जाती हैं। देख लो ना, मैं किसी की वालदा के लिए बुरे अल्फाज नहीं कहूंगी, लेकिन इन्होंने बाहर से ताबूत भेजा वालदा का और कोई वारिस साथ नहीं आया। ये होता है अंजाम। तुम तो अपनी वालदा के ताबूत को कंधा देने नहीं आए, बिगौड़े। तुम क्या करोगे इस मुल्क के अवाम तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम तुम्हें लानत भेज चुकी है, और वो लानत का सबूत देगी जिस दिन इस मुल्क में इलेक्शन हो गया, और वो होगा। इलेक्शन कमीशन आपका ये रोल है। आप हमारे टैक्स के पैसों पे, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, और हमें म्याऊं मत करो। 22 करोड़ अवाम अपना हक मांग रही है, वो तुम्हें देना पड़ेगा। और हक मांगने पे तुम बुरा मानते हो तो भले मानो, वी डैम केयर। आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, वो पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी रहता है और बाहर भी जहां रहता है, मैं ये आपको खान साहब की तरफ से पैगाम दे रही हूँ कि हमारी कॉल का इंतजार करें। किसी भी किस्म की ये हरकत करेंगे तो आपने हर जगह पे इमीडिएटली निकलना है, और हम इनको बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है और कानून के ताबे कैसे आया जाता है। बहुत शुक्रिया।